हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है नेचर ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ वर्क पहले हमने जैसे पुराने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, सिस्टम है, सराउंडिंग है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क में आपने सुना होगा कि वर्क टू टाइप से होता है। अकॉर्डिंग टू मशीनरी अगर हम जाते हैं, इट मीन्स इन द अकॉर्डिंग टू मैकेनिक लैंग्वेज, तो वर्क इज एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो व्हाट इज अ वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स व्हेन यू आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो और अगर वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेस कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब हम बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। So it means, but according to mechanic, this definition is this. We are now studying in thermodynamics. So according to thermodynamics, what is the work done actually? Work done is a product of pressure and volume. तो first हम पहले define करते हैं according to mechanic. तो mechanic क्या है? Work is defined as a energy because work is also a form of energy. So work is defined as energy by which body is displaced. It means body is moved from one place to another place through a distance. Distance is d with an application of force. It means when you are applying force, object is displaced one place to another place. This is the work done. But now according to in thermodynamics में if you are defining what is thermodynamic work done, work done is W equal to product of pressure and volume. अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे then it is a work done. अब हम इसको डिराइव करते हैं. You already know कि when a piston is moved up and down or contract or compress, then there is a displacement of the gas particles. It means there is a pressure and volume are going to change. So it means something is displaced from one place to another. So it means there is a work done. So work done is a pressure and volume, product of pressure and volume. But now we know pressure equal to force upon area. We can substitute the value of a pressure is force upon area. This is a force upon area and volume is V. We know the area is a displacement one place to another place. So we can write W equal to F A. Either you can write D square or volume, you know, unit is length, breadth and height. So we can write dq. Now we can cancel out W equal to force into displacement. So in thermodynamic also we know by applying force, by applying pressure, there is a change of volume from one place to another because the particles are moving up and down, contract and compress. So work is done. Now we are talking here heat. What is heat and what is the nature of heat? So what is the nature of a heat? Heat actually is also a form of energy. Heat भी क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है. हीट को हम, मैंने आपको बताया था, Q से डिनोट कर सकते हैं आप. हीट इज डिनोटेड बाय Q. तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सिस्टम से सराउंडिंग में जो चेंजेस आएंगे हम उसको हीट बोलते हैं. तो हीट को कैसे लिखेंगे हम? हीट आइदर में बी पॉजिटिव और हीट में बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी सिस्टम से हीट रिलीज भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है. तो हम उसमें नेचर ऑफ हीट के बारे में बता सकते हैं कि हीट अगर रिलीज हो रही है देन आवर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम देन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. This is exo. Exo means release of energy. Release of energy. Or heat you can say. Or endo means heat is absorbed by the system. Absorbed by the system. Means energy is absorbed.
Now we are talking about here what is the sign convention when we are talking work and heat. So how we can know what is the sign of a work and energy. So now we'll do next topic, sign convention of work and heat. Sign convention. Sign convention. Sign convention of work and heat. Now this question is for 2 marks in a board exam. Sign convention, if W is positive, it means work is done on the system. Work is done on the system. यानी किसी भी सिस्टम के अगर ऊपर काम कर रहे हैं हम, तो वर्क डन क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव. इट मीन्स एक्सपेंशन विल बी देयर और कॉन्ट्रैक्शन, compression will be there. You just tell कि expansion will be there or compression. Compression, because work is done on the system. It means the compression is there. Compression is there. Now if W is in negative, work done अगर हमारा negative है, तो work is done by the system. System हमारा काम कर रहा है, तो ये by and on these two words are very important. By the system, work is negative. It means work is in expansion. And when work is positive, then the compression is there. Now we are talking about next heat. How we can say heat is plus and minus. If heat is absorbed by the system, it means heat is in positive. When heat is absorbed by the system, it means heat is positive. It means endothermic is this. Endothermic process. Now, if heat is in negative, it means heat is released by the system. Heat is released by the system. Means exothermic process. So today, this is our sign convention of work and heat. Now we'll do some derivations related to work done. There are different type of work done: maximum work done, minimum work done, and work done by the chemical reaction. So we will discuss one by one. First will be work is done, minimum work done. Minimum work done. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है डेरिवेशन ऑन वर्क डन. तो फर्स्ट जो हम डेरिवेशन करेंगे वो मिनिमम वर्क डन पे करने वाले हैं. मिनिमम वर्क डन को हम स्पॉन्टेनियस वर्क डन भी बुला सकते हैं. इट्स ए स्पॉन्टेनियस वर्क डन. नेक्स्ट जो इसका दूसरा नाम है वो, क्योंकि मिनिमम वर्क डन है तो ये इरिवर्सिबल वर्क डन है, क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. इरिवर्सिबल वर्क डन. और एक और इसका नेम है जो बोर्ड्स में पूछते हैं स्पेशली, प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क डन. इन सब क्वेश्चंस का एक ही मीनिंग है, यानी वही डेरिवेशन हमें डिराइव करना है, चाहे वो मिनिमम वर्क डन हो, स्पॉन्टेनियस वर्क डन हो, इरिवर्सिबल वर्क डन हो, या फिर प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क डन है. अब उसको हम डिराइव करने के लिए क्या करेंगे? टेक अ वेसल विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. हमने एक वेसल लिया, उसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, और उस वेसल में आपने जो फिल किया है वो नंबर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर. ये जो वेसल है इसका जो एरिया है वो ए लिया हमने. ए इज द एरिया ऑफ द वेसल.
इनिशियली जो वॉल्यूम है विदाउट डिस्टर्बिंग द पिस्टन, इनिशियल वॉल्यूम इज ए V1। अब आपने जैसे इस पिस्टन को मूव किया अप एंड डाउन, तो देयर इज नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज गैस पार्टिकल क्या होंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे जैसे आप इस पिस्टन को अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो इट मींस यू आर अप्लाइंग हियर प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो देयर इज ए सम डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स का। तो अभी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि वर्क डन क्या होता है एक्चुअली। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था इन मैकेनिक्स और इवन इन अ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन, कि वर्क डन इक्वल टू इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। बट मैंने ये बताया आपको यहाँ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज इन थर्मोडायनेमिक्स देयर इज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज देयर, तो दैट्स व्हाई प्रेशर इक्वल टू वी नो फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स फ्रॉम देयर। फोर्स इक्वल टू P इंटू ए, बट एरिया मैंने यहाँ किससे डिनोट किया है, स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया है, तो आप यहाँ भी स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज कि सेकेंड एरिया कहां से आ गया। तो फोर्स अपॉन एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए फोर्स, तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, P इंटू ए इंटू डी। अभी A एरिया है और D डिस्प्लेसमेंट है, तो किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैसेस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप इस A इंटू डी के प्लेस पे यू कैन राइट चेंज ऑफ वॉल्यूम। चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर होता है, इट मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। अभी जहां भी हमारा फाइनल और इनिशियल दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो हम स्टूडेंट्स किससे डिनोट करते हैं उसको, डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा भी लिख सकते हो आप उसको, डी भी लिख सकते हो, डी इज ऑल्सो डेल्टा, और आइदर यू कैन यूज अ दिस साइन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ए डेल्टा साइन। तो ये भी डेल्टा का साइन है, डी भी डेल्टा है, और ये सिंबल भी आपका डेल्टा है। बट ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वर्क डन का, ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। तो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर वी आर पुटिंग हियर नेगेटिव साइन। यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन है विद द एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया था आपको फर्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि वर्क इज नेगेटिव इज देयर, तो इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम होगा तो यहां एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन। और अगर वर्क हमारा पॉजिटिव हो गया, P अगर हम डी डेल्टा भी लिखेंगे, अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम विथ सराउंडिंग। तो स्पेशली हमें साइन कन्वेंशन स्पेशली याद रखने जब व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग एनी एमसीक्यूज, और कोई भी हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, तो दे आर कंफ्यूजिंग ऑलवेज with the sign only. Sometimes they are on the system, by the system, with the surrounding, on the surrounding. So they are confusing us by changing the sign. So that's why we need to concentrate on the sign, where we will apply the positive and where we apply the negative sign. So if there is a negative, then expansion is there, and if there is a positive, then it is a compression is there. तो नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल डेरिवेशन ऑफ द वर्क डन। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्क डन क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम में डेल्टा V यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ। इसे हम जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं काफी प्लेसेस पर इसको यूज करूंगी कि आप कॉम्प्रेशन वर्ड्स के हेल्प्स के थ्रू ही आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं यहाँ मिनिमम वर्क डन लगाऊं या मैं मैक्सिमम वर्क डन लगाऊं, या फिर वर्क डन बाय द केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वो आपको देखना है कि व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूमेरिकल और व्हेन यू आर रीडिंग द सम। तो नाउ आवर सेकेंड डेरिवेशन जो है सेम इसी से ही
रिलेटेड है, बट वहां क्या है, मैक्सिमम वर्क डन कर रहे हैं हम। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब इसी पिस्टन को आप सो मेनी टाइम अप एंड डाउन करेंगे, तो देयर इज अ मैक्सिमम वर्क डन। आपने देखा होगा जब आप साइकिल में हवा भरते हैं तो एक लिमिट तक ही फिल करते हैं, तो एक लिमिट तक ही पिस्टन को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पिस्टन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू इवन द प्रेस द पिस्टन बिकॉज द मैक्सिमम एयर इज फिल्ड इन द टायर। अगर आप फोर्सफुली प्रेशरली कुछ करेंगे तो क्या होगा, टायर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या, अब वहां क्या हो गया, इट मींस देयर इज ए मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अभी हम सेकंड एक और डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑन मैक्सिमम वर्क डन। तो अभी मैक्सिमम वर्क डन के बारे में मैं बात करती हूँ। विल डिस्कस अबाउट मैक्सिमम वर्क डन। अभी हमारा नया हेडिंग हो जाएगा डेरिवेशन ऑन मैक्सिमम वर्क डन। अभी इसी वर्क डन को डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग करना है, जस्ट अपोजिट पहले वाले के जैसा ही। उसको मैंने मिनिमम वर्क डन दिया तो उसको स्पॉन्टेनियस वर्क डन बुलाते हैं, बट यहाँ मैक्सिमम वर्ड है तो मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क डन इज देयर, नॉन स्पॉन्टेनियस, इट नॉट सडनली। यानी आपके टीचर ने सडनली आपका टेस्ट नहीं लिया है, आपको पहले इन्फॉर्म किया है कि भाई आफ्टर 2 days, आफ्टर 4 days आई विल टेक अ टेस्ट, देन यू कैन गिव अ मैक्सिमम आउटपुट। बट अगर आपका सडनली टेस्ट लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, तो सम स्टूडेंट्स गेट इवन वेरी लेस मार्क व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ क्या है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स वी आर ऑलरेडी इंटीमेट कर रहे हैं हम लोग कि भाई इट्स ए वर्क डन, हमें मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो इट्स ए मैक्सिमम वर्क डन, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क डन, और ये रिवर्सिबल भी है क्योंकि हम तो इससे मैक्सिमम काम कर रहे हैं, तो इट्स ए रिवर्सिबल वर्क डन। तो ये आपके 3 टाइप के यानी सेम नेम से हम डिराइव करेंगे मैक्सिमम वर्क डन। अब हम उस वर्क डन के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। मैक्सिमम या स्पॉन्टेनियस वर्क डन के अकॉर्डिंग टेक अप सेम पिस्टन विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन विद अ सिलेंडर। या आपने एक सिलेंडर लिया एनक्लोज्ड विद अ गैस विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, सेम इनिशियल वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ ए गैस पार्टिकल इज ऑल्सो n एंड एरिया इज ए। बट यहाँ क्या है आपका, इस पिस्टन को आपने मैक्सिमम अप एंड डाउन किया, तो नाउ देयर इज ए चेंज ऑफ वॉल्यूम, इट मींस देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट इज देयर नाउ। तो मिनिमम वर्क डन के अकॉर्डिंग जब हम इसको अप एंड डाउन करेंगे तो देयर इज अ प्रेशर इज ऑल्सो चेंज बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। तो ओरिजिनल प्रेशर, atmospheric pressure minus change of pressure. Now we already know what is our minimum work done, W equal to minus P delta V। हमने ये ऑलरेडी डिराइव कर लिया था मिनिमम वर्क डन में, उसी की कंटिन्यूटी में मैं जा रही हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए P, इस P की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ P वी कैन राइट P minus dP। तो W equal to माइनस P माइनस dP, और क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा V, डेल्टा V। नाउ मल्टीप्लाइड एंड ओपन द ब्रैकेट, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, और ये माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस dP dV, dP dV, और डेल्टा यू कैन राइट और D यू कैन राइट। There is a small change in pressure and volume, so we will negligible, we will not consider this value will be negligible। तो हमारा डेरिवेशन क्या हो गया, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इट मीन्स अब हमारा जहां मिनिमम हम स्टार्ट हुआ था मिनिमम पर ही आ गए, बट मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो आपने मैक्सिमम आउटपुट के लिए किसी भी काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं, तो अकॉर्डिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में किसी भी काम को करोगे तो आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V फॉर द मैक्सिमम वर्क डन। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन 0 से वर्क डन से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम यानी इंफिनिटी से इंफिनिटी तक यू आर डूइंग वर्क, और इसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या चीज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है
और ये आपका फाइनल वॉल्यूम V2 है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करती हूँ। कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन? इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप जीरो से मैक्सिमम वर्क डन में, तो क्या लिखते हैं हम? W max। इट मीन्स इट्स इंटीग्रेटेड नाउ, जीरो वर्क डन टू इंफिनिटी। बट अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका माइनस P इंटीग्रेशन V1 V2 और ये आपका क्या हो गया? डेल्टा V। बट यहाँ देखो मैंने बताया कि देयर आर नंबर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ गैसेस मीन्स नंबर ऑफ गैसेस आर देयर n, एरिया इज A एंड चेंज इन वॉल्यूम इज D। तो हम यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। तो अब हम यहाँ PV इक्वल टू nRT मैं यूज कर रही हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। मैं यहां से P की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? nRT अपॉन V। अब इस प्रेशर की जो वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रेशर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे प्रेशर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, W max इट मीन्स मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए माइनस nRT इंटीग्रेशन V1 V2 और ये आपका क्या हो गया? डेल्टा V और डिवाइड बाय V। V को हम अरेंज कर लेते हैं फॉर द इंटीग्रेशन फॉर्म में ही। W मैक्स फाइंड आउट किया आपने माइनस nRT इंटीग्रेशन V2 V1 और ये हमारा हो गया dV अपॉन V। dV और डेल्टा यू कैन यूज एनी साइन। नाउ इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट ऑफ दिस पार्ट। अब हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब भी आप dx by x यूज करते हैं इंटीग्रेशन में तो नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। तो W max इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है V2 माइनस नेचुरल लॉग V1। ये हम इंटीग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो W max इक्वल टू माइनस nRT। आपने लॉग में पढ़ा होगा कि डिवीजन साइन, अगर डिवीजन साइन है तो माइनस कर देते हैं और माइनस है तो डिवाइड करेंगे। तो नेचुरल लॉग V2 बाय V1 हो गया। बट हमने देखा कि हमारे पास जो लॉग बुक है या हमें जो बोर्ड एग्जाम में दी जाती है उसमें नेचुरल लॉग के वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हम नेचुरल लॉग के प्लेस पे उसको रिप्लेस करेंगे बाय लॉग बेस 10। तो उसके लिए क्या रूल है? नेचुरल लॉग के प्लेस पे वी कैन राइट, जहां भी नेचुरल लॉग होता है नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 अप्लाई करते हैं हम। तो हम इस नेचुरल लॉग के बेस पे नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर लेंगे लॉग बेस 10 में। तो हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू, नंबर है तो पहले लिख लेते हैं, डिजिट है तो माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 बाय V1। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया किससे रिलेटेड? वॉल्यूम से रिलेटेड। कि व्हेन वॉल्यूम यानी इट मींस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन, इट मींस चेंज ऑफ वॉल्यूम्स आर देयर। तो वर्क डन का डेरिवेशन क्या हुआ हमारा? मैक्सिमम वर्क डन का W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 बाय V1। अभी माइनस साइन मीन्स मैंने अभी बताया एक्सपेंशन, नेगेटिव साइन मीन्स क्या है? वर्क डन क्या है? एक्सपेंड हो रहा है, इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एन क्या है आपके? नंबर ऑफ मोल्स हैं। एन इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पार्टिकल, क्योंकि गैसेस के ही नंबर ऑफ मोल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है। आर इज ए गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया इस पूरे चैप्टर में टाइम कहीं नहीं होगा किसी भी फॉर्मूले में। तो टी क्या है? यहाँ टेम्परेचर है। और V1 इनिशियल वॉल्यूम हो गया और V2 क्या है आपका? फाइनल वॉल्यूम हो गया। अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड कि हमें वॉल्यूम गिवन है इनिशियल फाइनल, देन वी विल अप्लाई ओनली दिस फॉर्मूला। बट अगर हमें न्यूमेरिकल में प्रेशर गिवन है तो प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं?
बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा बॉयल्स लॉ के अगर हम अकॉर्डिंग जाते हैं बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट, क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप उसको डिराइव करेंगे टू गैसेस में, P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा P2 V2। तो इट मीन्स अगर हमारे पास P1 अपॉन P2 है तो क्या है V2 बाय V1। इट मीन्स जहां भी हमारा V2 बाय V1 है उस V2 बाय V1 के प्लेस पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, P1 बाय P2। तो न्यूमेरिकल में अगर हमें प्रेशर गिवन है तो हमें P1 बाय P2 लिखना है, और अगर हमारे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन है तो हमें V2 बाय V1 लिखना है। ये याद रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम नेगेटिव साइन एज इट इज सेम, अगर नेगेटिव साइन है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर पॉजिटिव साइन है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इट मीन्स कंप्रेशन इज देयर। तो व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स तो प्लीज उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड्स पे, और हमें प्रेशर गिवन है या वॉल्यूम गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क डन का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस पार्टिकल्स लिए, वॉल्यूम्स को चेंजेस किया V1 V2, फिर हमने नॉर्मली मैंने मिनिमम वर्क डन का डेरिवेशन बताया कि कैसे मिनिमम वर्क डन तक आप गए। लेकिन क्या हुआ कि मुझे तो मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट करना है ना इस डेरिवेशन में, तो फिर मैंने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। इसको समझने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट में क्या करते हैं, जो भी चीज चेंज हो रही है, यानी चेंज क्या हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इनिशियल वॉल्यूम है और यहाँ फाइनल वॉल्यूम है। बट हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है बिकॉज इट्स एनक्लोज सिलेंडर है, तो PV इक्वल टू क्या है nRT। PV इक्वल टू nRT से मैंने P की वैल्यू को बाहर किया तो P इक्वल टू क्या हो गया, nRT अपॉन V। उसके बाद मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया इस P के प्लेस पे, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, nRT अपॉन V को। और जैसे ही आप nRT अपॉन V सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dV बाई V को फिर इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट करते हैं तो क्या रूल है मैंने बताया अभी कि V2 माइनस V1 हो जाएगा। जैसे ये V2 माइनस V1 होगा आपका तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अगर हमारे पास वॉल्यूम। बट मैंने बताया बोर्ड में हमारे पास नेचुरल लॉग नहीं देते हैं, वो हमें जो लॉग की बुक मिलती है वो लॉग बेस 10 मिलती है। तो लॉग बेस 10 की वजह से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नेचुरल लॉग को 2.303 लॉग बेस 10, और उसको लॉग बेस 10 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन आ गया हमारा -2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 बाय V1। फिर मैंने आपको बताया कि बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ में क्या बताया कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हमारे न्यूमेरिकल में प्रेशर गिवन होगा तो हम क्या लेंगे, P1 बाय P2 लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा V2 बाय V1। तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन हो गया, एक हमारा मिनिमम वर्क डन हो गया। अभी हमारे पास एक और थर्ड वर्क डन है जिसको हम वर्क डन बोलते हैं बाय रिएक्शन। यानी कोई अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में आप अपना वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम अभी थर्ड वाला टाइप का वर्क डन भी कर लेते हैं। तो थर्ड जो वर्क डन है फॉर द डेरिवेशन, मैक्सिमम वर्क डन हो गया, मिनिमम वर्क डन हो गया, अभी वर्क डन बाय रिएक्शन करते हैं। तो मैं थर्ड वर्क डन कर रही हूं, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड टाइप ऑफ द वर्क डन। अभी वर्क डन करेंगे हम इन अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है और उस केमिकल इक्वेशन में मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो डेरिवेशन है वो लिखेंगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी अगर हमें केमिकल इक्वेशन दी है
और उस इक्वेशन में वो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें इसी फॉर्मूले से वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन हम केमिकल इक्वेशन के हिसाब से करेंगे। वर्क डन हमने किया माइनस पी डेल्टा वी, ये हमने मिनिमम वर्क डन किया। मिनिमम वर्क डन में W इक्वल टू जो था आपका माइनस पी, हमने फाइंड आउट किया V2 माइनस V1 होता है। बट मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी आइडिया दिया। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, P V1 इक्वल टू N1 R और T। R और T कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम क्या लेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, P V2 इक्वल टू N2 RT। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, या आप यहां क्या करेंगे, पहले वर्क डन के लिए डिराइव करो इसे, माइनस P V2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है P V1। उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ऑफ P1 एंड PV2। तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, W इक्वल टू PV2 की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप N2 RT प्लस PV1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे N1 और RT। अब RT हमारा क्या है, इसमें कॉमन है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ये ब्रैकेट यूज करिए आप N2 प्लस 1, यू कैन N2 प्लस N1 और RT हमारा कॉमन हो गया। ये माइनस का साइन है, आप इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1 RT हो गया। तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू आप इसको क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा N RT। बट मैंने क्या बताया, ये नंबर ऑफ मोल्स किस में होते हैं, सिर्फ गैसेस में ही होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आप गैसेस में ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो किसी भी इक्वेशन में हम इस फॉर्मूले से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। Thank you for watching my video. If you have any doubts, any queries, please put in a comment box. As soon as possible, I will try to resolve all your problems. Thank you.